elimination addition reactions or Benzyne mechanism, elimination addition mechanism or Benzyne mechanism. यहाँ पर generally in absence of electron withdrawing group, here the substitutions are made to happen in absence of electron withdrawing groups by use of very strong base or with normal base in extremely severe conditions. Either by use of very strong base like KNH2 या फिर NaNH2 and or with normal bases in extremely severe condition. Extremely severe conditions मतलब टेम्परेचर हमें काफी हाई लेके जाना पड़ता है. काफी हाई मतलब 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है. तब फिर नॉर्मल बेसिस के साथ भी ये पर्टिकुलर रिएक्शंस जो है वो हो जाते हैं. ठीक है. एक टिपिकल एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पहले भी लिखवाया हुआ है. फिर से एक बार जस्ट 4 स्टेप्स में ब्रोकन डाउन है. पहला स्टेप है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में या वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज eliminating or extracting a proton from benzyl ring, phenyl ring, or leading to formation of a carbon ion. ठीक है. Then in presence of temperature or otherwise, in generally in presence of slight of temperature, this X gets eliminated. That is step 2, and that leads to formation of benzyne. This is something called benzyne. And benzyne. Then NH2 minus is added on it. It can get added either on this spot or on this spot, leading to formation of again a kind of transition state, which then pulls out. It's not transition state. This is also an intermediate only. So this pulls out. This carbon ion will pull out hydrogen from ammonia to regenerate or to make aniline. So basically X, the halogen is being replaced by NH2 minus. Halogen is being replaced by NH2 minus is the overall scheme. Or for that matter, X minus can be replaced by any nucleophile, any good nucleophile. ठीक है. However, बेस पहले हमको डालना होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर पाए. It has been noticed that step 1 and step 2 are concerted steps. Concerted steps का मतलब होता है लगभग एक साथ होने वाले steps. They take place simultaneously. ठीक है. Step 1 and step 2 both take place simultaneously, and this together is the slowest and rate determining step. इसमें भी bifurcation ऐसा है कि in case of fluorine and chlorine, step 2 is RDS, whereas for X with Br or I, step 1 is RDS. ठीक है. And extraction of proton is RDS in case of bromine and iodine, whereas if we have fluorine or chlorine, step 2 is RDS. Step 2 is elimination of X minus. Elimination of X minus is RDS, rate determining step. Benzyne mechanism में it has a strained and highly reactive triple bond. It exists as reactive intermediate. This is something which I have been repeating multiple times. ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तीसरा बॉन्ड जो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है. बेंट ऑर्बिटल होते हैं,
परफेक्टली पैरेलल ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, रादर दे आर स्लाइटली बेंट। बेंट मतलब कुछ इस तरीके के रहते हैं, एक ऐसे, और इनकी ओवरलैपिंग से बनता है हमारा तीसरा वाला पाई बॉन्ड, सॉरी चौथा वाला पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड तो हमारे इसमें होते हैं बेंजीन में। ये चौथा पाई बॉन्ड जो होता है दैट इज मेड फ्रॉम मिड इन दिस वे, साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे लेस रिएक्टिविटी होता है, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, हाईएस्ट इज ऑफ आयोडीन। ठीक है, या आयोडीन सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर X माइनस को हटना होता है, ठीक है, और X माइनस जब हट रहा है, X जब हट रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, दैट पार्ट इज रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, एलिमिनेशन, एडिशन वाले में क्या था? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाज एग्जैक्टली अपोजिट। एम आई राइट? हाँ सर। ठीक है ना? एलिमिनेशन एडिशन, सॉरी एडिशन एलिमिनेशन में इसके बिल्कुल उल्टा था। द रिएक्टिविटी वाज फ्लोरीन highest, followed by chlorine, followed by bromine, followed by iodine। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिटेल्स ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। बेसिकली कुछ कुछ रिएक्शंस हमने करे थे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। जैसे एक तो इंफॉर्मेशन यही है, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इट इज प्रोनाउंस, IUPAC नेम इज 1,2-dihydrobenzene। वी मस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, काफी काम की इंफॉर्मेशन है, ये पता ही होना चाहिए हम लोगों को। कॉमन नेम पता होता है बट ये नहीं पता होगा ना तो फिर वी विल बी इन ट्रबल। अब नॉर्मल बेंजाइन है तो इट इज 1,2-डिहाइड्रो। अगर नॉर्मल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट होता तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से फिर इसकी नेमिंग होती। मिथाइल यहाँ पे लगा होता तो ये 2,3-डिहाइड्रोबेन टॉलियन हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई? The fourth pi bond is between sp2 hybrid orbitals, works as dienophils in diol order reactions। अगर कहीं पर बेंजाइन है या बनने की पॉसिबिलिटी है, बन रहा है, और वी हैव डायल अल्डर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, जैसे 2-3 एग्जांपल्स आखिरी में देखेंगे हम लोग। इट कैन डू डायल अल्डर रिएक्शन। ठीक है, और डायल अल्डर रिएक्शन में इट इज गोइंग टू वर्क एज डाइनोफिल विद दिस बेंजाइन बॉन्ड। ठीक है, there are different reactions through which we can generate benzene apart from the one which has been discussed above. These are something like this: diazonium। ठीक है, ये डायजोनियम X ले सकते हो और यहाँ पर H रहेगा, या मे बी मेटल रहे कोई, M रहे। दोनों ही केसेस में ये X और ये H जो है ये रिएक्ट करके निकल जाते हैं, या M रहता है तो M X के साथ निकल जाता है। फिर फाइनली ये दोनों चीजें जो है N2 प्लस N2 जो है वो निकल जाता है, और CO2 जो है ये CO2 बन के निकल जाता है, निगेटिव चार्ज को यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। ठीक है, इन दिस वे इट फॉर्म्स अ बेंजाइन। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज आएगा, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होएगी एंड इट विल फॉर्म अ थर्ड बॉन्ड, सॉरी फोर्थ बॉन्ड, द बेंजाइन बॉन्ड। डाइक्लोरोफेनाइल, ठीक है, 1,2-dichlorophenoyl with Mg in PHA for dry ether. This also forms benzene।
Br और F two different ये halides with Mg. This is again going to form benzene. यहाँ पर phenyl lithium and F. So phenyl is able to phenyl माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा. Phenyl minus is able to extract a proton from here. It is forming this thing. This can then form a benzene by elimination of F minus. ठीक है? This is being eliminated to form a benzene. Is it okay? So there are in total 5 different ways which we have discussed. One is X in presence of NH2 minus can form benzene by elimination of proton first and then the departure of living group. ठीक है. दूसरा क्या हुआ? डायजोनियम, वन कार्बोक्सिलिक टू डायजोनियम. ठीक है, वन कार्बोक्सिलिक टू डायजोनियम बेंजीन. ठीक है. That is going to generate upon heating benzene 1,2-dichlorophenyl with Mg in dry ether or THF is going to produce benzene. Then even different halogens can react on, different halogens on benzene ring can react with Mg to form benzene. Furthermore, आखिरी चीज लिथियम के साथ है phenyl lithium. Phenyl lithium में phenyl is able to extract the H plus from this xylene ऐसा है. One per methoxy phenyl benzene, sorry, one per methoxy, two per fluoro benzene. ठीक है, आगे फिर से याद है ना. ठीक, वन पर मेथॉक्सी, टू पर फ्लोरो बेंजीन. इसके थर्ड पोजीशन से, थर्ड सेंटर से it can extract a H plus to form a anion, and this can then be heated to form the benzene. ठीक है. Next thing is there are certain details or facts of this mechanism. सिंपल सी चीज है, लेबलिंग करके हमको ये पता चला कि बेंजाइन में दोनों कार्बन जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं. नॉर्मल सिस्टम अगर हमने लिया है तो क्लोरीन जहां से जिस कार्बन से निकलेगा और उसके बाजू वाला कार्बन, इस साइड वाला या इस साइड वाला, दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म होएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से कहीं से निकलेगा. फोर्थ वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म होएगा. एडिशन के टाइम पर यहाँ पर भी ऐड हो सकता है या यहाँ पर भी ऐड हो सकता है NH2 माइनस. इट कैन ऐड आइदर ऑन लेबल्ड कार्बन और अनलेबल्ड कार्बन. ठीक है. ये स्टार मार्क जो किया हुआ है ना, दैट इज फॉर लेबलिंग कार्बन 14 के लिए. यहाँ पर लेबल्ड कार्बन पे NH2 माइनस जा रहा है and negative charge is generating on ortho to it, जो कि फिर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके अमोनिया से इट बिकम्स NaN. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, उल्टा एडिशन है. द NH2 minus is getting attached on other carbon, the second carbon, and ये कार्बन आयन बनाए, ये कार्बन आयन NH3 से फिर से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके एनिलीन बन जाएगा.
द डिफरेंस बिटवीन टू इज पहले वाले पे लेबल्ड कार्बन पे ऐड हुआ, दूसरे वाले में अनलेबल्ड कार्बन पे ऐड हुआ। स्टेबल कौन सा रहेगा, कौन सा किसका ज्यादा फॉर्मेशन होएगा? हाँ, बनेंगे दोनों, एक मेजर रहेगा दूसरा माइनर रहेगा, कौन सा मेजर रहेगा? फर्स्ट वाला मेजर होना चाहिए। फर्स्ट वाला मेजर रहेगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा इसकी वजह से। दूसरा, नो ऑर्थो हाइड्रोजन मींस नो बेंजाइन रिएक्शन, पहले भी बताया है, इट इज नथिंग न्यू। नो ऑर्थो हाइड्रोजन, नो बेंजाइन रिएक्शन, वी आर सेव्ड, ठीक है। तीसरा जो है, अगेन किया गया ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने ये ट्राई किया कि एक नॉर्मल बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमिनेट किया इसको, और एक ड्यूट्रिएटेड बेंजीन के ऊपर ब्रोमिनेशन किया, और ये दोनों प्रोडक्ट 50-50% हमने ले लिए हैं। बात समझ में आ रही है? इनके साथ हम सेम रिएक्शन हम करते हैं, तो वी गेट नॉर्मल एनिलीन एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्मल एनिलीन एज मेजर प्रोडक्ट, एंड this thing is dominant in the unreacted species, ठीक है। ये इससे बेसिकली हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है, और ये इसका कंसेंट्रेशन अनरिएक्टेड जो मटेरियल बचा ना, उसमें इसका परसेंटेज, सेकेंड वाले का परसेंटेज ज्यादा रहता है। What are we concluding based on this? Unreacted material has more of deuterio-bromobenzene than bromobenzene, shows that deuterio-bromobenzene is less reactive and consumed slowly, ठीक है। क्यों लेस रिएक्टिव है? एक्चुअली ना आप लोग बनाने टाइम ना ये सेकेंड वाला जो है ना पोजीशन, इसको भी ड्यूट्रिएट कर दो, थिंग्स विल बिकम मोर कोहेरेंट। अब कोई भी अल्फा वाला जाएगा तो, एंड दिस इज ट्रू, लाइक एक जो होता है उसमें भी वो चीज रहता है और दो वाले पे भी रहता है। सो बस आप लोग के समझने के लिए किधर से भी जाएगा, थोड़ी देर में आप लोग के दिमाग में आने लगेगा सर इधर वाला टूटेगा तो जल्दी फॉर्म हो जाएगा, ऑल दैट, बट दैट डजंट हैपेंस। डी वाले, this further asserts that involvement of orthohydrogen in RDS and isotopic effect of ortho D. This slow down or uh, yeah, relatively lower rate of reaction for deuterated bromobenzene shows that there is isotopic effect which is there, and that isotopic effect is going to be of what level? Is it going to be primary or secondary? आइसोटोपिक इफेक्ट प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा यहाँ पे, एटलीस्ट इस वाले केस में इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी। नहीं सेकेंडरी क्यों? आरडीएस क्या रहेगा? वो आरडीएस का ही पार्ट है ना, और बीआर के साथ इनफैक्ट तो यही बॉन्ड ब्रेक होएगा ना पहले, एंड दैट इज आरडीएस। अगर फ्लोरीन होता तो चलो फ्लोरीन का डिपार्चर जो होता दैट वुड हैव बीन आरडीएस, तो रेट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
इज इट ओके? हाँ सर। बट अभी तो पड़ेगा, अभी तो क्लियरली पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी। द आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ ऑर्थो डी इज प्राइमरी इन नेचर, ठीक है। प्राइमरी विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। एंड सेकेंडरी विथ, सेकेंडरी भी रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि तब रेट पर इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाला स्टेप जो है, सेकेंड वाला स्टेप जो है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ कौन सा स्टेप आरडीएस हो जाता है? विच वन? फ्लोरीन क्लोरीन के साथ स्टेप 2 हो गया आरडीएस, ये वाला स्टेप। ये वाला आरडीएस नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑफ H प्लस आरडीएस नहीं है। तो अगर ड्यूट्रिएशन करके रखा है हमने, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी होगा निकलना, तो दैट इज नॉट आरडीएस, इसलिए रेट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ स्टेप 1 इज आरडीएस, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन इज आरडीएस। अगर ड्यूट्रॉन होगा तो मुश्किल होएगी निकलने में, मुश्किल होएगी निकलने में, तो हमारा रेट जो होगा वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। सो यहाँ पर जब स्टेप 1 मेरा आरडीएस रहेगा, तो मेरा आइसोटोपिक इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? प्राइमरी लेवल का होगा। और जब हमारा स्टेप 2 आरडीएस रहेगा, तो आइसोटोपिक इफेक्ट किस लेवल का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, फ्लोरीन विद ड्यूट्रियम डाला NH2 के साथ, और दिस इज फॉर्मिंग दिस थिंग। एक्चुअली ये अमोनिया के साथ साथ मतलब डेल्टा भी रहेगा, बाकियों में भी डेल्टा रहेगा, डेल्टा रहेगा, इसकी वजह से ही आगे की चीजें होती हैं। एनीवे यहाँ पर NH3 के प्रेजेंस में, या ऐसे बोलो डेल्टा के प्रेजेंस में, दिस इज गोइंग टू फॉर्म बेंजाइन, ठीक है। और NH3 से एक्सट्रैक्ट करके ये नेगेटिव कार्बन आयन जो है, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन एंड इट इज फॉर्मिंग फ्लोरोबेंजीन। और NH2D से फिर से उसी को फॉर्म किया। NH2D कहाँ से आया? NH2 माइनस जिस D को लिया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो सिस्टम में हमारे पास क्या बच जाएगा? कुछ NH3 रहेगा, कुछ NH2 माइनस रहेगा, ठीक है, और कुछ NH2D रहेगा, राइट ना। ये NH2D जब रिएक्ट करेगा तो ये फिर से ड्यूट्रिएटेड फ्लोरोबेंजीन बना लेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लो। Am I right? 3 प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा कौन सा है? प्रोटोनेटेड फ्लोरोबेंजीन और सिंपली फ्लोरोबेंजीन। ड्यूट्रिएटेड फ्लोरोबेंजीन से हमको क्या मिल रहा है? फ्लोरोबेंजीन मिल रहा है, ठीक है। एनिलीन कन्वर्सन जो है, एनिलीन कन्वर्सन दैट टेक्स प्लेस एट वेरी स्लो रेट। एनिलीन कन्वर्सन स्लो रेट पर क्यों? क्योंकि बेंजाइन का फॉर्मेशन जो होता है वो काफी स्लो रेट पर होता है। इनफैक्ट ये सबसे पहले इस फॉर्म में पूरा कन्वर्ट होएगा, कन्वर्ट होने के बाद फिर आगे जब होगा रिएक्शन, तब फिर हमारा NH2 जो है वो इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड फिर ये होएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। सो एनिलीन, दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड कि ऑर्थोडेट्रियोफ्लोरोबेंजीन पे से एनिलीन का फॉर्मेशन जो होता है दैट हैपेंस टू बी वेरी स्लो, ठीक है, और इट हैपेंस एट वेरी स्लो रेट, वेयर एज elimination of deuterium or replacement of deuterium by protium that takes place at significant rate,
and this becomes the major product of the reaction. ठीक है, ब्रोमीन के साथ सेम चीज ट्राई करते हैं हम लोग। तो ब्रोमीन के साथ में क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बेंजाइन का फॉर्मेशन कम है, और ब्रोमीन और आयोडीन के साथ बेंजाइन का फॉर्मेशन रिलेटिवली फास्टर रहेगा, ड्यूट्रिएशन ड्यूट्रॉन हटेगा और फिर ब्रोमीन भी हट करके बेंजाइन बना लेगा। दीज थिंग्स आर माइनर। यहाँ पर H प्लस का abstraction from ammonia that takes place later, event extraction of D plus from NH2D, that is again lesser. Here the benzene is a major product. Okay? This is major, and if this is major, then final product will be this, which will be the major product, right? Am I making sense? So फ्लोरोड्यूट्रिएटेड अगर होता है, ड्यूट्रिएटेड फ्लोरोबेंजीन अगर रहता है, ऑर्थोड्यूट्रिएटेड फ्लोरोबेंजीन, तो वहां से हमको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन वी आर गोइंग टू गेट दिस नॉर्मल फ्लोरोबेंजीन, वेयर एज ब्रोमीन के साथ में इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, द एनिलीन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एनिलीन में डी भी नहीं रहेगा। लास्ट थिंग यहाँ पर डिस्कस ये किया गया है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड दोनों से हमको सेम प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको इंटरमीडिएट जो मिलता है वो सेम मिलता है। इंटरमीडिएट इज सेम, देयरफॉर प्रोडक्ट इज सेम। कहाँ वेट करूं? वेरी गुड। सो पहला वाला तो बन गया हम लोग का, दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाइए। अच्छा, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था, पता है क्या? हाँ राइट सर। ना? थर्ड वाले में क्या होएगा? थर्ड वाले में बेंजाइन तो यही वाला बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और क्या बनेगा? या तो इधर बनेगा, नहीं तो इधर बनेगा, दोनों में बनेगा तो सेम ही चीज ना। अब ये बताओ, हाँ, अब फिर से NH2 माइनस का एडिशन कहाँ पे होएगा? या तो यहाँ पे हो सकता है, हो तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, नहीं तो यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। कहाँ पे ऐड होगा? सो दैट हमको स्टेबल इंटरमीडिएट मिले। मेटा। मेटा पे, वेरी गुड। So I'll have meta product here also, and we are done. Good. अब इस प्रीटेक्स्ट में बाकी सारे जो सॉल्व किए हुए हैं इनको एक बार देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। पैरेलल रूट्स में मेजर वाले ब्लू से ड्रॉ किए हुए हैं हर जगह पे। जस्ट हैव अ लुक एंड
Hello. Reaction with metals, reactive metals, coupling reactions. First one is Fittig reaction, quite well known. Sodium or any reactive metal or any reactive metal is going to bring this reactive metal is going to bring this reaction. Wurtz-Fittig reaction. This is a cross coupling reaction. We have these three things, these two things as side products. And then last one is Ullmann's reaction. This takes place in presence of copper, which is not so active. Uh, it is in fact not at all considered active, but still in presence of copper with iodide, there is certain this reaction do take place. This coupling reaction do take place. Mechanism looks something like this. Copper gets oxidized. Carbon, the point of contact of halide carbon is reduced by accepting 2 electrons given away by copper, forming this particular entity. Then we have again addition of 5i iodide leading to this, and there is then elimination of CuI, and this two things join in order to form diphenyl. यहाँ पर the point to be noted is if ring contains if ring is activated, ring is activated, okay, then this reaction does not take place. Then this reaction does not take place. ठीक है, सिंपल सी चीज है. अगर यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहेगा, तो इस कार्बन को कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज रहेगी, and the reaction generally do not take place in such scenario. However, but if EWG electron withdrawing group is attached to the ring, the rate of reaction increases. ठीक है. Therefore, if we have a situation like this, I nitro, this is going to be greater than I this nitro meta nitro, this will be greater than I normal iodide,
and the second turn is going to be ICH3. अब अगर CH3 के बदले यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, मान लो फेनॉल डाल देते हैं OH, ठीक है, तब क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, फिर रिएक्शन ही नहीं होएगा। Am I making sense? हेलो, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। Fine. Okay, so this is something about it. एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, and we'll then end up this topic. Question is, which of the following aryl halide will not show Ullmann reaction What is our thought? Okay, the answer for this is only C is not going to do. ठीक है, C will not do. यहाँ पर OH है, एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, बट इस पोजीशन पर बहुत ज्यादा एक्टिवेशन नहीं है। अगर ये ऑर्थो या पैरा पे रहता ना तो ये डेफिनेटली नहीं करता। अभी कैसा है कि एसिडिक मीडियम अगर लाते हैं ना, एसिडिक मीडियम में उसको रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तब फिर नहीं करेगा। बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में कराएंगे ना तो ये कर जाएगा रिएक्ट, ये बिल्कुल नहीं करेगा। अरे उल्टा बोल गया क्या मैं? एक्चुअली उल्टा बोल गया। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट कर जाएगा, बेसिक मीडियम अगर रहा ना तो फिर रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम रहा तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम रहा तो चांसेस रहेगा कि ये कर जाएगा, चांसेस नहीं डेफिनेटली कर जाएगा। ये किसी भी मीडियम में नहीं करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम डाला हमने तब थोड़े से चांसेस बनेंगे, बट अदरवाइज ये बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है, मेटा पोजीशन में होने की वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन रिलेटिवली कम रहेगा, इसकी वजह से ये कंपाउंड थोड़ा रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, और ये दोनों तो डेफिनेटली करेंगे। ओनली पॉसिबल आंसर इज दिस वन, द बेस्ट सुटेड आंसर इज दिस वन। इज इट ओके? ठीक है, चलो फिर लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स। ठीक है, और फिनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज।
it is solid at room temperature. Room temperature due to number one, presence of H bonding, presence of H bonding. इंटर होगा या इंट्रा होगा? Inter. Inter होएगा. And the second thing is because of presence of ये molecular bulk, molecular bulk of benzene. ठीक है? These two things is going to make it. Primarily this one is responsible, otherwise तो benzene भी solid हो जाना चाहिए था. But ठीक है, बल्क का भी होता है कुछ कंट्रीब्यूशन, एटलीस्ट लिक्विड फॉर्म में ला करके उसको रखता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर. ठीक है. सेकेंड थिंग इज solid. It is white. I mean, this is white crystalline solid. Crystalline solid with solid with melting point equal to solid with melting point 43 degrees Celsius and boiling point of 182 degrees Celsius. If we have diphenol, इसी के अंदर में if we had substitutions like this, the boiling point or melting point is going to be something like this. ये compound के and this is order of melting point and boiling point. There can be another comparison like ROH, H2O, and phenol. This is again melting point and boiling point order. Melting point and boiling point order. ठीक है. इसके लिए reasons क्या हो सकते हैं? What could be the proper reason for this effect or this relative order of boiling and melting point? No. यहाँ से यहाँ का ऑर्डर जो है वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं, जबकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्सप्लेन नहीं होता है, बल्क ऑफ पाई से एक्सप्लेन होता है. ये किस चीज से एक्सप्लेन होता है?
डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। H2O के पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है कंपेयर टू ROH, इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ROH के कंपैरिजन में, ठीक है। और H2O के कंपैरिजन में 5OH का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 5 का स्टेरिक बल्क जो है वो ज़्यादा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ओवर द मास inertial factor is overtaking the hydrogen bonding factor. Am I making sense? So यहाँ पर क्या है? Extent of H bonding और यहाँ पर क्या है? Molecular bulk. Molecular mass भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Methods of preparations of phenol. Methods of preparation. The first method is Dawes method. Dawes process. Now this one is actually an industrial process method. An industrial process. It is like you have a chlorobenzene and you treat it with aqueous NaOH. Temperature requirement is 350 degrees Celsius and you have a temperature range, temperature of 350 degrees Celsius and a pressure range of 100 to 200 atm. ठीक है. Mechanism is SNAR. We have discussed this already, and first there is phenoxide ion which is formed. This upon treatment with H3O plus gives rise to phenol. ठीक है. This cannot be used in, it cannot be used in, can't be used in labs, in lab. ठीक है. High temperature pressure requirement. There is one more thing. If suppose any electron withdrawing group, if any EWZ is present on the ring, the temperature and pressure conditions can be relaxed. ठीक है. यानी सीवियरिटी कम कर सकते हैं हम, फिर भी रिएक्शन हो जाएगा हमारा. मेकिंग सेंस? The next set of reaction is hydrolysis of diazonium salt. Diazonium salt. We have diazonium over here
plus Cl minus. This is then treated with acidified water, and in the end you have good nice phenol. ठीक है, बाकी के प्रोडक्ट क्या होंगे? There will be N2 which will get released. ठीक है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड रीजनरेट हो जाएगा. ठीक है. Third method of preparation is from Grignard. Reagent chlorobenzene, फिर से हमारा haloarenes, aryl halides are going to be our starting points. Aryl halide. This is then treated with Mg in dry ether. Mg in dry ether. And we have MgX. This is then treated with O2 to form OOMgX. This is then treated with acidified water, H2O, and it forms phenol. Is it okay? Noted. हाँ Yes, sir. सर. The fourth reaction is with here the starting point is benzene itself. It is then treated with oleum. Oleum के साथ treat करके सल्फोनिक एसिड बना लेते हैं SO3H. This is then treated with NaOH and temperature range of 250 degrees Celsius to 360 degrees Celsius is maintained. It then produces ONA, and this can be acidified to get phenol. The fifth method is going to be again from this one, but this one as in Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, using Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, इसमें हमारा होता ये है, बेंजीन लेते हैं प्लस वी हैव प्रोपेन हालाइड CH3 CH2 CH3 sorry CH2
and Cl. This in presence of AlCl3 first gets rearranged 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना करके ऐड होता है, ठीक है. CH, CH2, sorry, CH3, and then we have CH3. This is called cumene. This is then oxidized with oxygen at 95 degree to 135 degree Celsius, and this forms something like this. Carbon, CH3, CH3, O, O and H. This is then treated with acid in reversible manner, H plus H2O. अच्छा, जहाँ भी H plus H2O है वो सब जगह पे reversible ही रहता है. It's not only with this. So we have formation of this sort of thing. Carbon, CH3, CH3, O and OH and एक और H plus charge, ठीक है. And in presence of this, this is gone. The plus charge gets transferred over this carbon, ठीक है. So minus H2O, ये भी in fact reversible ही होगा. Loss of water, minus H2O. This is going to generate this particular entity, CH3, यहाँ कार्बन लिख लेते हैं, ये CH3 and O plus, ठीक है. दो लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल. अब ऐसे सिनेरियो में what happens is there is a phenyl shift which takes place, ठीक है. फिनाइल शिफ्ट हो करके बेसिकली फिनाइल यहाँ कार्बन से टूट करके ऑक्सीजन पर जा करके ऐड हो जाता है. 1,2 फिनाइल शिफ्ट. And it leads to formation of this particular entity, CH3, CH3 and positive charge. This positive charge is being stabilized by oxygen. Water then again gets added to it in reversible manner, H2O, and it forms something like this. CH3, CH3, OH2 plus, ठीक है. Then there is a reversible loss of proton from this. Reversible loss of proton leading to formation of this particular entity, CH3, CH3 and OH. Further, there can be gain of proton by this oxygen, and it forms OH plus CH3, C, OH and plus
and CH3. This is going to again lose the proton, minus H plus, to form acetone. ठीक है? So the end products are right, phenol and acetone. So basically carbonyls के preparation में, basically ketones के preparation में, this can be a good thing. Next thing is, we cannot have formation of, under this process we cannot have formation of formaldehyde या फिर methanol और any other aldehyde. Aldehydes का preparation हम इसके through नहीं कर सकते हैं, whether formaldehyde or acetyl sorry ethanol or any such aldehydes. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा बाय एनी चांस, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो जो फिनाइल माइग्रेट कर रहा था यहाँ पे, उसके बदले हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा. हाइड्रोजन हैज बेटर माइग्रेटिंग टेंडेंसी. मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हाइड्रोजन और बेंजीन दोनों रहेगा, तो हाइड्रोजन ज्यादा फास्ट माइग्रेटर है ना, तो इट विल माइग्रेट टू दिस रादर देन फिनाइल. तो फिर हमको फिनॉल नहीं मिल सकता है, फिनॉल ही नहीं बनेगा, कोई और अल्कोहल बन के रह जाएगा. ठीक है? एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी. वेरी गुड. अभी मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, एंड यू गाइस हैव टू प्रेडिक्ट द दिस थिंग. क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? What will be the outcome? What will be the outcome in this case? ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, यू नो वेरी वेल. सबसे पहले क्या होगा? देवांग, अरे where is the- हाँ, सॉल्व किया हम लोगों ने.
Done. हाँ सर। Very good. बोलो आंसर। पैराक्रेसॉल बनेगा दोनों में। दोनों में पैराक्रिस्टल बनेगा। वेरी गुड। और सेकेंड प्रोडक्ट क्या होएगा? दिस इज गोइंग टू बी 5C डबल बॉन्ड O5। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? पहला वाला तो पैराक्रिस्टल बनेगा प्लस will have a नाइट्रो, दूसरी तरफ नॉर्मल रिंग। ठीक है, ये वाला दोनों ही केसेस में ये वाली चीज जो है ये हमारी माइग्रेट करेगी। दिस इज हैविंग बेस्ट माइग्रेटिंग टेंडेंसी बिकॉज दिस इज अ एक्टिवेटेड रिंग। ठीक है, तो जनरली एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड या नॉर्मल रूम्स के कंपैरिजन में एक्टिवेटेड रिंग्स है और एक्टिवेटेड रिंग्स है बेटर माइग्रेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, राइट। हाँ सर। एवरीवन अंडरस्टूड? बाकी लोग? हेलो हेलो। हाँ सर। Preparation for phenol. Post this we have chemical properties of phenol. ठीक है, पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? इट इज एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है ये? क्योंकि फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फेनॉल इटसेल्फ। फेनॉल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जितना है उससे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसका है? फेनॉक्साइड आयन का है, राइट। फेनॉक्साइड आयन is more resonance stabilized than phenol. The curve is going to look something like this. I'm drawing the curve. You just need to know this. Okay. The curve is going to look something like this. मान लो ये सपोज हमारा फेनॉल के ये स्ट्रक्चर जो है that has energy equal to this. The real structure of phenol, which is this stabilized phenol, is approximately this. ठीक है? The difference of energy is roughly this much.
this is the energy gap between these two structures. ठीक है ना? अब ये जब H प्लस लूज करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इट विल राइज अप समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट है। ठीक है, this is going to be the structure for O माइनस। इसके कंपैरिजन में हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला जो सिस्टम होगा O माइनस, O एंड पूरे स्ट्रक्चर पे फिर माइनस चार्ज, that can be maybe entire structure पे minus charge. So the gap is now something like this. ठीक है, मेकिंग सेंस? यहाँ पर एनर्जी स्टेबलाइजेशन, ये वाला एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से ये इट्स लाइक this is more acidic or this is acidic first of all. पोटेंशियल एनर्जी सेंस में देखें तो फेनॉल से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी फेनॉक्साइड की रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। H प्लस लूज करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है ना? इट इज नॉट लाइक कि फेनॉल से पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी इसकी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सारे लोगों ने नोट कर लिया? हाँ सर। आई थिंक पहले भी Yeah. नोट कराया है, बट पेज 40 just to remind, HC ट्रिपल बॉन्ड CH से ज्यादा एसिडिक होता है ROH, इससे ज्यादा एसिडिक होता है H2O, इससे ज्यादा एसिडिक होता है FiOH, इससे ज्यादा एसिडिक होता है नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पी नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक होता है RCOH, फिर डाइनाइट्रोफिनॉल, NO2 और इससे ज्यादा होता है पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पहले भी बताया हुआ है मैंने, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ओनली थिंग इज ये तीनों जो होते हैं दे गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। इसके नीचे जो हैं ये सारे, दे आर नॉट गोइंग टू डू नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एसिड्स, राइट? और बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एसिड्स, कैरेक्टरिस्टिक
relativistic test of acids. Okay. Third is एक मिनट so phenol जो है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रहेगा हम लोगों को ना. Next thing is alcohol do not react with alkalis. ठीक है, but FiOH, that is phenol, reacts with alkali. Is it okay? Noted. These are three important chemical properties or distinctive properties. Next is chemical reactions. Chemical reactions of phenol. First one is halogenation. ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन. फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के साथ. हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में ये होता है कि अगर न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, phenol gets converted into phenoxide ion. ठीक है, phenol readily gets converted into phenoxide ion, और phenoxide ion जो होता है वो phenol से ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, काफी ज्यादा, हाईली एक्टिवेटेड. अब ऐसे सिनारियों में अगर X2 इस पे ऐड होता है एंड साथ में न्यूट्रल या बेसिक मीडियम है, इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास, दैट इज फॉर श्योर. पोलर सॉल्वेंट जनरली वाटर रहेगा, अगर वाटर रहता है तो पोलर सॉल्वेंट. बाकी कोई वीक रहता है तब तो नहीं हो पाएगा उतना स्ट्रांगली, बट इसके साथ में व्हाट हैपेंस इज यू हैव ट्राई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट. ठीक है, you have X, X and X. तीनों पोजीशन पर you get halogenation. Try halogenated phenoxide. अब इसको थोड़ा सा H प्लस कर लेंगे तो हमको फेनॉल मिल जाएगा with try substitution. Making sense?
if instead of this, suppose we opt to use either non-polar medium or mildly acidic medium, ठीक है, mildly acidic medium or non-polar medium. In mildly acidic medium or non-polar medium. ठीक है, माइल्डली एसिडिक वाले में क्या होता है कि OH जो होता है ये प्रोटोनेट हो जाता है and ठीक है, और ये तब फिर X2 in H2O react करता है and it produces monohalogenated OH and X at para. ठीक है, नॉन पोलर वाले में क्या होगा, दिस इज इन माइल्डली एसिडिक. हाँ, hello. In non-polar medium, what happens is medium. This thing is not disturbed. ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ऐसा कोई भी फॉर्मेशन करके या H प्लस को लूज करके इंक्रीज नहीं करती है. ठीक है, एट द सेम टाइम you have very mild polarization of X2. If you have anything like CCS2 disulfide, or maybe you can have CCl4, ठीक है, CS2 or CCl4. In presence of these reagents, X2 will get mildly polarized, and in this scenario also we tend to have only one para mono substituted product. Is it okay? Third scenario is if we have highly acidic medium. ठीक है, तो highly acidic medium में कुछ नहीं होने वाला, nothing will happen. ठीक है, ये प्रोटोनेटेड फिनॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा हाईली एसिडिक मीडियम में, and there will be phenol will start getting protonated. It will be highly protonated. Phenol will be highly protonated, hence no reaction. ठीक है, यहाँ पे बोलोगे सर प्रोटोनेट करके आपने ये कर लिया, यहाँ पर प्रोटोनेशन जो है ना कुछ इस तरह का रहता है. इट इज मोर बैकवर्ड फेवर्ड. मोर बैकवर्ड फेवर्ड का मतलब क्या हुआ, दिस स्पीसीज विल बी लेस. तो इतने इस टाइप के जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे दे विल रेंडर्ड इन ए अनरिएक्टिव या इनर्ट, एंड ये वाले जो होंगे इनका अमाउंट कम रहेगा, तो कम रहेगा तो दे विल ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट हैम्पर्ड. ठीक है, प्लस ये एक्टिवेटेड उस लेवल के नहीं होते हैं जितना ये फेनॉक्साइड आयन होता है, and therefore we only get mono-substituted product. When it start getting highly protonated, there will be no reaction. ठीक है, is it okay? Can we predict the product in these 2-3 cases? Suppose I have a phenol
and SO3H being added to it, and we have Br2 aqueous. What product can we expect? And then there is one more. If you want, you can provide some warmth also. You have COOH, SO3H, and OH with Br2 aqueous. This will surely require some delta. This may not require any delta. ठीक है? Hello. Yes. Hello. हेलो. हाँ, ये सॉल्व किया क्या हम लोगों ने? देखिए, यहाँ पे दो चीजें होंगी. पहला तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा यहाँ का. ठीक है? डीसल्फोनेशन हो करके ये स्पेस खाली हो जाएगा और फिर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? Br, Br and Br. This is going to be our final product. Aqueous है, SO3H जो है वो aqueous में बाहर निकल जाता है. रिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पर डेल्टा देने का पर्पस क्या है? डेल्टा देने का पर्पस ये है COOH जो है ये एक्चुअली डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, तो ये पोजीशन भी खाली, और एक्वस है तो ये पोजीशन भी खाली. दोनों खाली, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या? सेम. राइट? Am I making sense? Yes, sir. Very good. Let us move ahead. इसके बदले अगर मान लो हम कुछ इस तरह का रिएक्शन कराते हैं, सेम दोनों रिएजेंट बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट सेम रखते हैं, कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ठीक है? कंडीशंस क्या कर देते हैं? एक्वस के साथ साथ बेसिक मीडियम अप्लाई कर देते हैं. ठीक है? अब बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेसिक मीडियम में होता ये है कि ये जो चीज है ये एलिमिनेट नहीं होती है, हटती नहीं है खुद से. ठीक है? माइल्डर एसिडिक एंड स्ट्रॉन्गर एसिडिक. स्ट्रॉन्गर एसिडिक में ये फॉरवर्ड फेवर्ड होता है, माइल्डर एसिडिक में ये बैकवर्ड फेवर, सॉरी, मतलब सल्फोनेशन वाले रिएक्शन में इफ द कंसंट्रेटेड एसिड इज टेकन, द सल्फोनेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है? फॉरवर्ड. और वहां का बैकवर्ड क्या होगा? डीसल्फोनेटेड. तो यहां पर एक्वस अगर हम करते हैं तो डीसल्फोनेटेड प्रोडक्ट, लेकिन बेसिक मीडियम में डीसल्फोनेशन नहीं होता है. डीसल्फोनेशन के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए. या तो न्यूट्रल रहे या फिर एसिडिक रहे. न्यूट्रल वाले में भी वो इमीडिएटली एक हटेगा तो एक के हटने से वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है एंड देन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड. बात समझ में आ रही है? Are we getting this point? Yes, sir. All of us. PG41. See,
So what I'm saying is, I'm just saying that if I'm going to use this OH and suppose SO3H and maybe Br2 in plus Br2 and mildly basic medium, ठीक है, strongly basic वगैरह करेंगे तो ये redox में चला जाएगा. We don't want that to happen until unless that is desired. ठीक है, so ये हेलो सो बेसिक मीडियम में सल्फोनेशन जो है, सल्फोनेटेड पोजीशन जो है, दैट नॉट गेट इम्पर्टेड एंड बीआर का एडिशन वगैरह जो होना है वो सिर्फ 2 अवेलेबल पोजीशन या जितने अवेलेबल पोजीशन रहेंगे उतने ही अवेलेबल पोजीशंस पे होता है. ठीक है ना. ओके ठीक है, आज के दिन में अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं. कल हम लोग का फिर से लेक्चर है क्या बाय एनी चांस?